Om Jnanatimirandasya Jnananjanasalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Lokanath Swami Niti Namine. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pasachari Satarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So I'd like to again express my heartfelt joy for joining the devotees, and also thankful to Guru Maharaj for giving me this opportunity to speak today on the topic Rasa dance. तो परम पूज्य सुंदर चैतन्य गोस्वामी महाराज सर्वप्रथम सबका और विशेष रूप से गुरु महाराज का आभार व्यक्त कर रहे हैं कि आज महाराज को इस अत्यंत विशेष विषय रास यात्रा पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है. We had such a wonderful program yesterday, Kirtan Mela and Pushpa's Abhishek, so sublime, so wonderful. तो कल यहाँ इस्कॉन नोएडा में बहुत अद्भुत कीर्तन मेला और भगवान राधा गोविंद देव का पुष्प अभिषेक संपन्न हुआ. Jai Shri Radha Govinda Dev Ki Jai. जय. So, it's explained in Srimad Bhagavatam that the Rasa dance actually takes place during the full moon. तो श्रीमद् भागवतम में ऐसा वर्णन है कि जो रास यात्रा है, जो रास नृत्य है, वह पूर्णिमा के दिन संपन्न होता है. At the age of 7, Krishna lifted Govardhan Hill, and this Rasa dance took place at the age of 8, when he was 8 years old. तो जब भगवान कृष्ण 7 वर्ष के थे, तब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, धारण किया था, और जब वे 8 वर्ष के थे, तब उन्होंने रास नृत्य किया. And when Krishna is seeing the full moon night, and there is also various seasonal flowers taking place, and Krishna remembered actually the prayers of the gopis to goddess Katyayani. तो भगवान कृष्ण जब यह पूर्णिमा रात्रि का चांद देखते हैं और उस समय कई मौसमी पुष्प जो खिले हुए हैं उनको देखते हैं, और उस समय उन्हें गोपियों की वह प्रार्थना का स्मरण होता है जो उन्होंने कात्यायनी देवी से की थी. The gopis praying to the goddess Katyayani, they prayed for Krishna to become their husband. और वह प्रार्थना जो गोपियों ने कात्यायनी से की, उसमें यह था कि वो यह प्रार्थना कर रही थी कि भगवान कृष्ण हमारे पति बने. And this full moon night is just suitable for the Rasa dance. And so their desire to have Krishna as husband will then be fulfilled. तो यह जो पूर्णिमा की रात्रि है, यह विशेष रूप से अत्यंत अनुकूल थी, और उनकी तीव्र इच्छा हो रही थी कि इस दिन रास नृत्य हो और भगवान कृष्ण का उन्हें संग सानिध्य प्राप्त हो. The sun rays are not very soft because it causes burning sensation, but it's not also very romantic. But the moon rays are very, very cooling, and the night lotuses also blossom.
तो दिन का जो समय है वह जो सूर्य की किरणें हैं वे बहुत अधिक शीतल नहीं होती है, उनसे कुछ गर्मी भी होती है, और वे प्रेम प्रसंग युक्त भी नहीं होती। परंतु जो रात्रि का समय है, जो चंद्रमा की किरणें हैं, वे अत्यंत शीतल होती है और सुहावनी लगती है। The Prabhupada said that the blossoming of flowers is a sign of joy. And also when he saw the moon, reminded him of Lakshmi or Radharani. तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जब पुष्प खिलते हैं तो इसका अर्थ है कि उनको देखकर कैसे आनंद का अनुभव होता है। इसी प्रकार से जब भगवान कृष्ण ने पूर्णिमा के चांद को देखा तो उन्हें राधा रानी या लक्ष्मी जी का स्मरण होता है। So the moon actually illuminating the forest takes away the sorrow because there is soft rays. So meeting is very, very conducive. तो जो चंद्रमा है वह वास्तव में जो दुख है, जो चंद्रमा की किरणें हैं वे इतनी शीतलता प्रदान करती है कि जो दुख है उसका वो नाश कर देती हैं। तो इसलिए वो बहुत उपयुक्त समय होता था जब मिलन हो सकता है यह। And the blue lotuses open only during the moonlight. Even if you try to bring lots of spotlights to open the blue lotuses, it will not open. So our life is also like that, very, very, remain very tight. और विशेष रूप से जो नीले कमल होते हैं, जिन्हें नील कमल कहा जाता है, वे केवल चंद्रमा की रोशनी में ही खिलते हैं। नहीं तो हम उसके ऊपर कितनी भी दूसरी लाइट डालें उससे वे नहीं खिलते हैं, केवल चंद्रमा की रोशनी में ही वे खिलते हैं। Normally, the forests, they are very, very dangerous. There are many dangerous animals. But this forest is not like that. It's a different forest. जनरली हम देखते हैं सामान्यतया कि जो जंगल है, जो वन है, उसमें कई भयानक जीव रहते हैं। परंतु जिस वन में यह रास नृत्य हुआ वह ऐसा नहीं है, वहां ऐसे कोई डरावने जीव नहीं रहते, जीव जंतु। In Srimad Bhagavatam, the word used is one api means Krishna. He has no desire that needs to be fulfilled because he's always full with six opulences. He still want to enjoy the company of the gods in the rasa dance. श्रीमद् भागवतम में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, इसलिए उनकी कोई इच्छा नहीं होती है। परंतु फिर भी वे गोपियों के साथ में यह रास नृत्य करने के इच्छुक थे, वे यह करना चाहते थे। So that signifies that this dance it is not like the ordinary dancing of young boys and young girls, because it is mentioned also in Bhagavatam, Yogamayam Upasritaha, which means that this dancing with the gopis is on the platform of Yogamaya, but not Mahamaya. तो इस प्रकार ये जो हमने देखा कि किस प्रकार यह नृत्य विशेष है, यह कोई एक सामान्य नृत्य नहीं है जो कोई युवक और युवती के मध्य हो। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि यह जो रास नृत्य है वह किस प्रकार योग माया द्वारा संपन्न किया जाता है, उनके संरक्षण में होता है, यह महामाया द्वारा कंट्रोल नहीं होता। The dancings of young boys and girls within the material world is in the kingdom of Mahamaya, the external energy of the Lord. So the rasa dance of Krishna with the gopis is on the platform of Yoga Maya. तो इस भौतिक जगत में युवक और युवतियों के जो नृत्य है वह महामाया का जो साम्राज्य है इसके अधीन है। परंतु जो महामाया जो भगवान की बाह्य ऊर्जा भी है,
परंतु भगवान कृष्ण का गोपियों के साथ में जो रास नृत्य है वह तो वास्तव में योग माया के संरक्षण में होता है। Because the difference between the platform of Yogamaya and Mahamaya is compared in the Chaitanya Charitamrita, it is explained that it is compared to the difference between gold and iron. तो चैतन्य चरितामृत में महामाया और योग माया इनमें क्या अंतर है उसको कंपेयर किस प्रकार किया गया है, तो वहां बताया है कि जो योग माया है वह स्वर्ण के समान है, उनका जो संरक्षित क्षेत्र है, और महामाया के उसको लोहे के समान बताया गया है। Gold and iron are both metals, but the quality is completely different. So similarly, all the Rasadance and Krishna's association with the gopis appears like ordinary mixing of young girl and young boys and girls, but the quality is completely different. यद्यपि यह स्वर्ण और लोहा ये दोनों धातु ही होते हैं, एक ही कैटेगरी के हैं, दोनों धातु है, परंतु इन दोनों के गुण सर्वथा भिन्न होते हैं। उसी प्रकार से दिखने में भगवान कृष्ण का जो रास यात्रा है वो भी एक नृत्य की तरह दिखता है, परंतु रास नृत्य और युवक युवतियों का जो ये भौतिक नृत्य है, इन दोनों में गुण की दृष्टि से बहुत भेद है। And so Prabhupada said that the difference is appreciated by great Vaishnavas because they can understand the difference between love of Krishna and lust. तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि यह जो भेद है भौतिक नृत्य में और रास नृत्य में, तो इस भेद को जो महान वैष्णव आचार्य हुए हैं वे इसको बहुत विशेष प्रकार से बताते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रेम में और काम में क्या अंतर होता है। On the platform, on the Mahamaya platform, dances takes place on the basis of gratification. But when Krishna called the gopis by sounding his flute, they very hurriedly rushed towards the spot of the rasa dance with a transcendentalist desire to satisfy Krishna. तो महामाया के जो क्षेत्र है, जो संरक्षण है, उसमें यह जो नृत्य होता है यह वास्तव में गोपियां भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना चाहती हैं। तो भगवान जब अपनी मधुर मुरली बजाते हैं और उसकी ध्वनि से वे गोपियां आकर्षित होती है, तो वे चाहती हैं कि हम भगवान की सेवा करके उन्हें संतुष्ट कर सकें। Srila Krishna Das Kaviraj Swami explained that lust means sankatification, and love also means sankatification, but it is for Krishna. I'm sorry, Maharaj, I missed that. Krishnadas Kaviraj Goswami explained that lust means sankatification, and love also means sankatification, but for Krishna. ओके तो कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि जो काम है वह भी एक प्रकार से इंद्रिय तृप्ति है, इंद्रियों को तृप्त करना है, और प्रेम भी इंद्रिय तृप्ति है, परंतु प्रेम का अर्थ है भगवान कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना, और काम का अर्थ है स्वयं की इंद्रियों को संतुष्ट करना। So one of the activities are on the material platform, and then it is on the platform of sanctification, and then it is called material activities. But when the activities are enacted for the satisfaction of Krishna, they are called spiritual activities. तो यह बहुत सरल है समझना कि भौतिक स्तर पर जब व्यक्ति स्वयं के इंद्रियों की तृप्ति करता है तो वह भौतिक स्तर पर है, और जब कोई कृष्ण के इंद्रियों की संतुष्टि करना चाहता है, उनकी सेवा करना चाहता है, तो वह आध्यात्मिक स्तर पर संपन्न होती है। And Prabhupada said, on any platform of activities, the principle of sun gratification is there. But on the spiritual platform, sun gratification is for the Supreme Lord, Krishna, whereas on the material platform, it is for the performer.
तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि किसी भी स्तर पर यह जो सिद्धांत है इंद्रिय तृप्ति का, यह रहता ही है। तो जो आध्यात्मिक स्तर है वहां पर यह सिद्धांत है कि इंद्रिय तृप्ति कृष्ण की होनी चाहिए, उनकी इंद्रियां संतुष्ट हो। वहीं भौतिक स्तर पर ऐसा भाव हो जाता है कि जो जीव है वो स्वयं की इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। Prabhupada gave the example of on the platform, a material platform, when a servant served the master. So he's trying to satisfy not the senses of his master, but rather his own senses. तो प्रभुपाद बहुत सुंदर इसका उदाहरण देते हैं कि भौतिक स्तर में जब कोई सेवक अपने स्वामी की सेवा करता है तो वास्तव में उसका ऐसा भाव नहीं होता है कि इससे मेरे स्वामी संतुष्ट होने चाहिए, अपितु वह इनडायरेक्टली अपनी ही इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करता रहता है। And Prabhupada said, if the servant would not if the servant would not serve the master, if the payment is stopped, that means that the servant engages himself in the service of the master just to satisfy his own senses. तो प्रभुपाद आगे बताते हैं कि यदि जो सेवक है वो अपने स्वामी की सेवा करता है और यदि उसको उसका जो वेतन है वो नहीं दिया जाए तो वह सेवा करना बंद कर देता है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि अंत में जो उसका लक्ष्य है या उद्देश्य है वह स्वामी की सेवा करना नहीं है, अपितु स्वयं की इंद्रियों को तृप्त करना है जो उसको वेतन मिलता है उससे। And again, on the spiritual platform, the servitor of the Lord serve Krishna without payment, and he continues his service in all conditions. That's the difference between Krishna consciousness and the material platform. तो आध्यात्मिक स्तर पर जो जीव है भगवान के जो पार्षद हैं वे बिना कोई वेतन लिए हुए कृष्ण की सेवा करते हैं। उनको और कुछ चाहिए नहीं उस सेवा के लिए। तो यह एक बहुत बड़ा अंतर है भौतिक स्तर पर जो हम देखते हैं सेवक और सेव्य का भाव, और जो आध्यात्मिक स्तर पर है। So Krishna was around 8 years old during that time. So at that time, many of the gopis were also married, because in India, Prabhupada said that especially in those days, girls were married at very, very early age. तो जब यह रास नृत्य हुआ उस समय भगवान कृष्ण मात्र 8 वर्ष के थे और जो गोपियां थी उनमें से कई गोपियों का तो विवाह भी हो चुका था, क्योंकि उस समय भारत में ऐसी रीति या ऐसा परंपरा थी कि जो लड़कियां हैं उनका विवाह बहुत छोटी उम्र में हो जाता था। So the gopis, they were continually, to hope that Krishna one day would become their husband. So their attitude towards Krishna was that of parakya, right? We said parakya bhav. तो यद्यपि ये जो गोपियां हैं उनमें से मतलब कईयों का विवाह हो चुका था, परंतु फिर भी उनकी यह इच्छा थी कि भगवान कृष्ण हमारे पति बने। तो यह जो भाव है वह परकीय भाव है। It's called parakya rasa. So this parakya rasa is like an attitude of a married man who desires another's wife, or the wife desires another husband. Is called parakya rasa. तो यह परकीय रस जो है इसका अर्थ होता है जब कोई विवाहित पुरुष किसी अन्य स्त्री के साथ संग करना चाहे या जो विवाहित स्त्री है वो अन्य पुरुष के साथ संग करना चाहे। In fact, Krishna is the husband of everyone, because he is a supreme enjoyer. So the gopis wanted Krishna to be their husband, but actually there was no possibility of his marrying all the gopis. तो वास्तव में यदि हम देखें तो भगवान कृष्ण तो सभी के पति है,
वे ही सर्वश्रेष्ठ भोक्ता है। तो जो गोपियां इच्छा कर रही है वह एक प्रकार से भगवान की ही, वे भगवान ही सबके पति है, तो उनकी जो इच्छा है वह कुछ गलत इच्छा नहीं है। But because they had this natural tendency to accept Krishna as their supreme husband, so that's where this relationship is called, the gopi is called parakya. तो जो गोपियां हैं उनका यह एक स्वभाव है कि वो भगवान कृष्ण को, जो सबके पति है, उनको अपना पति चाह रही है, पति स्वीकार करना चाह रही है। यद्यपि लौकिक दृष्टि से उनका विवाह हो चुका है, इसलिए उनके इस रस को परकिया रस कहा। So this parakya ras exists, I mean, is ever existent in Goloka, Vrindavan, in the spiritual sky. And yeah, in the material world, parakya rasa is abominable. तो यह जो परकिया रस है, यह हमेशा से जो गोलोक वृंदावन है वहां पर यह उपस्थित रहता ही है, परंतु इस भौतिक जगत में इस रस को अत्यंत घृणित समझा जाता है। But in the spiritual world, it is present in the super excellent relationship of Krishna and the gopis. परंतु जो आध्यात्मिक जगत है वहां पर यह परकीय रस अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर होता है, क्योंकि वह गोपियों और भगवान कृष्ण के मध्य है। As we know, there are many relationships with Krishna, master and servant, friend, parents and son, and lover and beloved. So out of all these rasas, the parakya rasa is considered to be the topmost in the spiritual world. तो भगवान श्री कृष्ण के साथ में भक्तों के कई अलग अलग रस होते हैं जिनका वो आस्वादन करते हैं, जैसे दास्य है, सख्य है, वात्सल्य है, माधुर्य है। तो इन सभी रसों में जो श्रेष्ठ माना जाता है वह है यह परकीय भाव। So because this material world is a perverted, Prabhupada said, perverted reflections of the spiritual world. It's just like the reflection of a tree on the bank of the water. So the topmost part of the tree is seen as the lowest part. तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि यह जो भौतिक जगत है वो आध्यात्मिक जगत का एक एक प्रकार से विकृत उसका प्रतिबिंब है। तो जैसे एक वृक्ष है, वो नदी के किनारे खड़ा है, तो उसका जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वह प्रतिबिंब में सबसे नीचे की ओर दिखता है। So similarly, when parakya uh, is pervertedly reflected in this material world, it is most abominable. तो उसी प्रकार से जो परकीय भाव है वो आध्यात्मिक जगत का अत्यंत उच्च भाव है, परंतु जब यह इस भौतिक जगत में, जो कि आध्यात्मिक जगत का एक विकृत प्रतिबिंब है, तो जब यहाँ देखा जाता है तो उसमें विकृति आ जाती है, इसलिए उसको अत्यंत घृणित समझा जाता है। But then when people try to imitate, when they imitate this rasa dance of Krishna, the gopi, they simply enjoy the perverted reflection, the abominable reflection of the real parakya rasa. तो उसी प्रकार जब इस जगत के जो जीव है वे भगवान के इस रस का, परकीय रस का आस्वादन करना चाहते हैं, तो वे जब अन्य स्त्रियों के साथ में इस प्रकार का भाव रखते हैं तो यह अत्यंत ही घृणित और निंदनीय समझा जाता है। So there's no possibility of enjoying this parakya rasa in this material world. So one should not imitate this parakya, even in a dream or in imagination. So those who do so, they're actually drinking poison, most deadly poison. तो यह जो परकीय रस है, इस प्रकार इसका आस्वादन इस भौतिक जगत में संभव ही नहीं है। किसी को भी इस
इस रस का आस्वादन करने का नकल नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि उसको सोच में या स्वप्न में भी ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो वह जानबूझ करके और विष पान कर रहा है। So this appearance of the moon in the sky is actually Krishna's desire to dance with the gopis. And the forest is also filled with fragrant flowers, and the atmosphere was cooling and festive. तो इस प्रकार यह जो पूर्णिमा की रात्रि है, इस पूर्णिमा के रात्रि के चंद्र को देखकर भगवान कृष्ण गोपियों के साथ यह नृत्य करना चाहते हैं। और उनकी इस उत्तेजना को, जो वन में अत्यंत सुगंधित पुष्प खिले हुए हैं, उनकी जो खुशबू है वह चारों ओर फैल रही है, उसको देख करके कृष्ण और अधिक व्याकुल हो जाते हैं, या भी और अधिक उनकी तीव्र इच्छा बढ़ जाती है गोपियों के साथ में यह नृत्य करने की। So when the Lord Krishna blow his flute, the gopis all over Vrindavan become mad and chanted, and the attraction to the vibration of the flute also increased 1,000 times, also due to the rising full moon. तो भगवान कृष्ण ने ऐसा विचार करके नृत्य का, अपनी जो मधुर मुरली है, जो बांसुरी है, वह बजाई। और जब वृंदावन की गोपियों ने उसका आवाज, जो वेणुनाद है, उसको सुना, तो उनकी तीव्रता, वो बांसुरी की आवाज सुन करके और जो चंद्रमा को देख करके जितनी उत्तेजना हुई, उससे कई सैकड़ों गुना अधिक उनकी तीव्रता बढ़ गई कृष्ण मिलन की, जब उन्होंने वह बांसुरी की ध्वनि को सुना। And all the gopis were by nature, they were very attracted to Krishna's beauty. But when they heard the vibration of the flute, they became apparently very, very lustful and tried to satisfy the senses of Krishna. तो स्वाभाविक रूप से जो गोपियां हैं, वे भगवान श्री कृष्ण के रूप की ओर अत्यंत आकर्षित रहती हैं। परंतु जब उन्होंने भगवान की ये जो वेणु का नाद सुना, जब बांसुरी की ध्वनि को सुना, तो उनका जो प्रेम है वह कई गुना बढ़ गया, और वे तीव्र उन इच्छा हुई उनकी कि हम कृष्ण से मिलें और उनकी जो इंद्रियां हैं उनको हम संतुष्ट करें, भगवान को संतुष्ट कर सकें। And they all left their respective service engagement, and then they proceeded to the spot where the flute was blowing. तो गोपियां जो कुछ कार्य कर रही थी उस समय, उन्होंने वे सारे कार्य छोड़ दिए और वे तुरंत उस दिशा की ओर भागती हुई जाने लगी जहां से यह बांसुरी की आवाज आ रही थी। And they rushed swiftly. It's explained, Prabhupada explained that their earrings were swinging back and forth. Some of them were engaged in milking the cows, but they left the cows half finished and immediately went to Krishna. तो गोपियां इतनी अधिक आतुर थी कि वे जो कुछ कार्य कर रही थी उसको पूर्ण किए बिना ही वे उस ध्वनि की ओर भागने लगी। जैसे कुछ गोपियां जो गाय का दूध निकाल रही थी, तो वे उस दूध को पूरा दोहन भी नहीं किया, गाय का अधूरा छोड़ करके ही वह उस ओर भाग रही हैं जहां से यह ध्वनि आ रही है। So they did not care whether the milk was overboiling or spilling. They immediately left to see Krishna. Some of them were also breastfeeding the children, the small babies, and some were engaged in distributing food to the members of the family. But they left everything. They left the engagement and went to see Krishna. तो कुछ गोपियां दूध गर्म कर रही थी उस समय, तो उन्होंने ये भी नहीं देखा कि यदि हम चली जाएंगी तो दूध उफन जाएगा, वह गिर जाएगा नीचे। कुछ गोपियां अपने बच्चों को स्तनपान करा रही थी, कुछ गोपियां अपने परिवार के सदस्यों को उस समय भोजन परोस रही थी। परंतु जैसे ही उन्होंने यह ध्वनि सुनी, तो वे सारा कार्य छोड़ करके उसकी ओर भागने लगी। Some was serving their husband, or they was themselves eating.
but caring neither to serve their husband nor eating, they immediately left. And some were decorating their faces with cosmetic ointments. They just left everything. तो कुछ उस समय अपने पतियों को भोजन परोस रही थी, उनके लिए भोजन बना रही थी। कुछ गोपियां उस समय स्वयं भोजन कर रही थी। कुछ गोपियां उस समय श्रृंगार कर रही थी, परंतु उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। और जैसे ही उन्होंने वह बांसुरी की ध्वनि को सुना, वे उसकी ओर भागने लगी। And some of them, their faces were decorated half, and then they put their clothes upside down. So they were so attracted to Krishna, they just left and went to see where Krishna was standing. तो गोपियों का जो स्तर है वह इतना उच्च था कि जब उन्होंने वह ध्वनि सुनी बांसुरी की, जो वेणुनाद सुना उन्होंने, तो वे आधा जो श्रृंगार कर रही थी वो आधा श्रृंगार हुआ है किसी का। किसी गोपी ने तो जो वस्त्र है वे उल्टे सीधे पहन रखे हैं, जो नीचे के वस्त्र है वे ऊपर डाल दिए, ऊपर के वस्त्र नीचे पहन लिए। और इस प्रकार वे बहुत आतुरता पूर्वक कृष्ण की ओर भागने लगी। And Sri Prabhupada added that Krishna consciousness is so powerful that it gives everybody relief, in fact, from all material activities. Srila Goswami has also written very nice. It is said that one gopi advising the another gopi, my dear friend, if you desire to enjoy company of material society, friendship and love, then please do not go to see the smiling boy Govinda who is standing on the bank of the Yamuna. तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो कृष्ण भावनामृत है यह इतना श्रेष्ठ है, इतना पवित्र है कि हमारा जो कुछ भी भौतिक इच्छा है, जो कुछ भौतिक कार्य हम करना चाहते हैं, कृष्ण भावनामृत हमें उससे मुक्त कर देता है। तो ऐसा रूप गोस्वामी भी बताते हैं कि एक गोपी अपने दूसरी गोपी को ऐसा समझा रही है कि यदि तुम्हें भौतिक जगत में आनंद उठाना है, कुछ तुम्हारी इच्छा है, तो तुम कभी भी भगवान गोविंद का दर्शन मत करना, जो कि यमुना के तट पर खड़े हैं, बांसुरी बजा रहे हैं और जिनके मुख पर अत्यंत स्मित हास्य है। Sri Prabhupada again explained that it's one who is actually captivated by the beautiful smiling of face of Krishna. He has lost all attraction for material enjoyment. So this is a test of advancement in Krishna consciousness. A person advancing, Prabhupada said, in Krishna consciousness must lose interest in material activities and personal gratification. तो श्रील प्रभुपाद आगे बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के यह जो हास्य है, यदि इससे कोई आकर्षित हो जाता है, मोहित हो जाता है, तो फिर उसका इस भौतिक जगत में स्वयं की इंद्रिय तृप्ति करने का या भौतिक जगत में कुछ आनंद उठाने की जो इच्छा है वह पूर्णतया उसकी नष्ट हो जाती है। So they were completely absorbed. Some of the gopis, they were actually detained from going to Krishna by their husband and were locked up by force within their rooms. So being unable to go to see Krishna, they began to meditate upon the form of Krishna by closing their eyes. तो they were meditating upon Krishna's form. Yeah, they by were locked closing down. They them. were not allowed to go out, so they were locked down, and they're sitting and they were meditating upon the form of Krishna, closing their eyes. कुछ गोपियां ऐसी थी जिनको उनके जो पति थे या जो परिवार के सदस्य थे वो उनको जाने नहीं दे रहे थे और उनको एक प्रकार से उन्होंने कमरे में बंद कर दिया था। तो यह गोपियां भगवान कृष्ण का जो रूप माधुर्य है उसका चिंतन करते हुए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान का वे ध्यान करने लगी। So the gopis just could not go. They were actually meditating on him as perfect yogis. तो जो गोपियां वहां नहीं जा सकी वे एक
अत्यंत श्रेष्ठ योगी की भांति भगवान के उस सुंदर रूप का चिंतन करने लगी। So this is what also Maharaj Parikshit heard from Sukadeva Goswami explain the situation of the gopis who assembled with Krishna in the Rasa dance. तो इस प्रकार यह जो लीला है इसका श्रवण महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से किया कि किस प्रकार गोपियां और भगवान कृष्ण का यह रास नृत्य संपन्न हुआ। So there is a question in the Srimad Bhagavatam asked by Sukadeva Goswami, and then Narada was giving the answer like the gopis, by their lusty desires, they were able to attain perfection. Just like Kamsa also, by fear of Krishna, Shishupal, by envy, and the Yadus by the family relationship with Krishna. तो श्रीमद् भागवतम में आगे ऐसा एक प्रश्न भी आता है कि यह जो गोपियां हैं यह सभी प्रकार का जो भौतिक आकर्षण है उससे मुक्त हो गई थी और उन्हें वे मुक्त हो गई थी बेसिकली। तो उसी प्रकार से जो कंस है उसको भी भगवान वो निरंतर भगवान का ही स्मरण कर रहा है, क्योंकि कंस भय के कारण स्मरण कर रहा है। शिशुपाल को भी सर्वत्र कृष्ण दिख रहे हैं क्योंकि वह उनसे शत्रुता का भाव रखता है। और जो यदु कुल के जो वंशज है उन सबको भी कृष्ण का स्मरण होता है क्योंकि वे उनसे एक कुछ पारिवारिक संबंध रखते हैं। And the Pandavas, by great affection for Krishna, and the general devotees, by devotional service, they have attained the mercy of Krishna. उसी प्रकार जो पांडव है उनका कृष्ण के साथ बहुत अधिक स्नेह है और जो सामान्य जनता है वे भगवान से प्रेम करती हैं। तो इस प्रकार सभी किसी न किसी प्रकार से जो कृष्ण से संबंधित है उन सबको उच्च स्तर या उच्च गति प्राप्त होती है। And when the gopis had come, Krishna had also advised them to afterward to go back home. So when the gopis heard, and they were a little bit disturbed and angry from hearing the free advice of Krishna to go back. तो जब गोपियां ऐसा सब कुछ त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के पास में आती है उस वन में, तो कृष्ण उन्हें ऐसा निर्देश देते हैं कि उन्हें पुनः अपने घर चले जाना चाहिए। तो गोपियां ऐसा सुनकर के अत्यंत क्रोधित भी होती हैं और उनको यह पसंद भी नहीं आता। So they diverted their attention to looking at the beauty of the forest. So at that time, the whole forest was illuminated by the bright shining moon, and they were looking at the forest. Their attention was diverted. तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वे घर से आई थी तब उनका जो चिंतन था वह केवल भगवान कृष्ण की ओर था, और जब वे वन में पहुंचती है तो उनका ध्यान एक प्रकार से थोड़ा उनका ध्यान भटक जाता है और वे जो वन की सुंदरता है उस समय वह वन कितना आकर्षक लग रहा था उस ओर उनका ध्यान आकर्षित हो जाता है। And then Krishna took the opportunity of the looking at the forest, and he advised them, I think you have come out to see the beautiful Vrindavan forest on this night. He said, but you must now be satisfied. So now you must return home without delay. I तो understand that कृष्ण this woman. तो कृष्ण जब यह देखते हैं कि कैसे ये वृंदावन के इस वन का देख रही हैं गोपियां, तो कृष्ण इस मौके का फायदा उठाकर उन्हें इस प्रकार कहते हैं कि अब चूंकि आप देख रहे हो यह वृंदावन कितना सुंदर लग रहा है रात्रि के समय में और आपने इसका दर्शन भी किया है, अब आप इससे संतुष्ट हो जाइए और एक
जैसा पतिव्रता स्त्री होती है उसके समान अब आप पुनः अपने घर लौट जाइए अपने पति के पास। And you must have left your crying babies at home. Must be crying by now. Please immediately go back and just feed them with your breast milk. I can understand that you have very a great affection for me. So, but you have come here to hear my playing of the flute. तो कृष्ण कहते हैं कि आ, हो सकता है आपके कईयों के छोटे बच्चे हैं, आपने मेरे इस वेणु के नाद को सुन करके उनको भी छोड़ के आ गए हो, तो अब आप पुनः अपने घर चले जाओ। वह गोपियों को बता रही हैं कि अब तुम्हें चले जाना चाहिए, क्योंकि अब आपके बच्चे भी रो रहे होंगे और यह आपका एक विशेष आकर्षण था मेरी ओर, जिसके कारण इस प्रकार से आप यहाँ आई हो। And Prabhupada is writing also that you're feeling, Krishna is saying, you're feeling an affection for me are very, very appropriate because I am the Supreme Lord. So all living creatures are my part and parcel. So they are affectionate to me. So this affection for me is very much welcome. And I congratulate you for that. But now you can go back to your home. तो कृष्ण अब उन्हें कुछ सिद्धांत बताते हैं। प्रभुपाद ऐसा वर्णन करते हैं कि आप यह जो आपका ये जो आकर्षण है मेरी ओर, ये जो आप आई हो सब कुछ छोड़ करके, ये अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं ही सभी जीवों का परम भोक्ता हूँ। मैं ही एक प्रकार से सारे जीव मेरे ही अंश है। तो अब चूंकि ये जो आकर्षण है ये अत्यंत श्रेष्ठ है, आप यहाँ आई हो, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब मैं आपको आज्ञा देता हूँ कि अब आप सभी वापस चली जाओ अपने घर। And that a married woman should not be searching for a parakya, for paramour, because this is not sanctioned in a Vedic principle. So if you think that you are very much attached to me and you want my association, I'd advise you not to be personally try to enjoy me here. So it's better you go home, simply talk about me and think of me. So this is a process constantly remembering me and chanting my names. You will surely be elevated to the spiritual platform. तो कृष्ण आगे कहते हैं कि आप जो गोपियां हो, आप सभी तो विवाहित स्त्रियां हो, तो इसलिए विवाहित स्त्री का इस प्रकार अन्य व्यक्ति के साथ में संग करने का जो इच्छा है वह श्रेष्ठ नहीं है। तो ऐसी मेरी आज्ञा है कि आप पुनः अपने घर चली जाओ, वहां जाकर के मेरे नाम का, मेरे रूप का निरंतर चिंतन करो, और ऐसा करने से तुम अवश्य इस भौतिक बंधन से मुक्त हो जाओगी। And at this point, the gopis were shedding tears, heavy tears, and the cosmetic decorations were being washed from their faces. And they said, "Oh dear Krishna, you are the Supreme Lord. There is no doubt about it." तो गोपियां जब कृष्ण की ऐसी वाणी सुनती है तो वे अत्यंत व्यथित हो जाती है। उनकी आंखों से निरंतर अश्रु धारा बहती है, और उसके कारण जो उन्होंने श्रृंगार किया था वह सब बह जाता है। और वे कहती हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कृष्ण, कि आप ही परम पुरुष हो, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो। You are the eternal husband. You are the eternal son, eternal friend, and eternal master. And one who enters into a relationship with you is eternally happy. तो आप वास्तव में हम सभी के जो सनातन पति है, आप हमारे सेव्य है, हम आप सबके सेवक हैं, यह सब ठीक है। तो जब कोई इस प्रकार आपका चिंतन करता है तो वह इस भौतिक जगत से तो मुक्त हो जाता है। And finally, Prabhupada explained that yes, beside it's explained in Bhagavad Gita, Krishna is his only enjoyer, and you are the only proprietor and the only friend. तो श्रील प्रभुपाद भगवत गीता में ऐसा बताते हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्ण भगवत गीता में जैसा कह रहे हैं कि वही एकमात्र भोक्ता है, वही एकमात्र मित्र है, और वही एकमात्र स्वामी है। Jai Sri Radha Govinda ki, Sri Prabhupada ki, Jai Gopyamanande. हरी Thank you. हरी।
Thank you. Thank you so much, Maharaj. Thank you so much, Maharaj, for today's talk and for the detailed understanding about this important subject matter. सभी भक्तों से अनुरोध है हमारी परंपरागत पद्धति से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके परम पूज्य श्री सुंदर चैतन्य गोस्वामी महाराज का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी के साथ आज के सत्र को हम यहीं विराम देते हैं। कल पुनः गुरु महाराज जी के सानिध्य में हरे नाम जप और टॉक के लिए हम सब एकत्रित होंगे। और कल का परम पूज्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में कल का टॉक परम पूज्य श्री नव योगेंद्र स्वामी महाराज के द्वारा दिया जाएगा। सभी भक्तों से अनुरोध है कि जरूर ज्वाइन कीजिए और अन्य भक्तों को भी आप सूचित कर सकते हैं। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, परम पूज्य श्री सुंदर चैतन्य गोस्वामी महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।